चामराजपेट की सियासत क्या कह रही है? चामराजपेट की बिलखुसूस सियासत कांग्रेस के बारे में बेहद कामयाबी के साथ है। उसका नज़ारा आप थोड़े वक्त पहले आप ही खुद देख चुके हैं। और जो चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, मैं 20 दिन से लगातार पूरे 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहा हूँ। लो लेवल में फील्ड वर्क काम कर रहा हूँ। मैं बेहतरीन लोगों के अंदर कांग्रेस को जिताने की तय कर चुके हैं। और उसके साथ जो कैंडिडेट हमें मिला है सेंट्रल में, वो बेहतरीन एजुकेटेड और डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी जो 10 स्कूल बेंगलुरु के अंदर हैं, वो इतने दानिशमंद हैं कि वो छुपे रुस्तुम कहा जा सकता है कि उसने छुपे हुए काम करते हैं। वो उनकी पहले से ही गरीबों के लिए 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो मेरी नॉलेज में है। साथ में दिल्ली पब्लिक स्कूल के कर्नाटका इंडिया स्कूल बनाकर गरीबों के लिए फ्री पढ़ा रहे हैं। वो अभी उनके आइंदा के प्रोग्राम बहुत बेहतरीन हैं। उनके ज़ाती प्रोग्राम स्कूल बनाने के लिए गरीबों के लिए बेंगलुरु के अंदर बनाने का है। साथ में मैं कुमार स्वामी के बारे में कुछ बोलना चाहूँ। उनके जो परसों हाल एक इंटरव्यू में मुसलमानों को उनको गिला कर चुके हैं। वो उनको खुद मालूम नहीं है कि उनके वालिद से जाके पूछे कि उनकी बुनियाद शुरू हुई, उनके जो वोट मिलकर उन्होंने जो सीढ़ी चढ़े वो मुसलमानों के रामनगर के वोटों से चढ़े थे। उसके बावजूद वो जो गिला कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, उनकी नॉलेज ही नहीं है। ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಾರೇ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರದ್ದು ಬಯಕೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಈಗ ನೋಡಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 6 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನೆದು. ಒಂದು ಪಾಪ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ 36 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೀ 2000 ದುಡ್ಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇನು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇವರು PC ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ 3 ಬಾರಿ PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಬರೀ 0. PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ಬರೀ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏರಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 0. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮತವಾಗಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಮೀರ್ ಛತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಬಡವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾರು ಜನ ಬೀದ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಏನಕ್ಕೋ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವ್ರು ಬೆದರಿಸೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ BJP ಅವರು. ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾಲದಿಂದ
ಮನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಆಗ ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅವರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಗೆಲ್ಸ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ MP ಗೆಲ್ಸ್ತಾರೆ. ಈಗ MP ಗೆಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತು एक नया बाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी सियासी करियर का जो है एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं आप, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, क्या कैसे आपने जो है कांग्रेस पार्टी का इंतखाब किया? देखिए, जैसे पूरे स्टेट के और पूरे हमारे देश के लोग जानते हैं, जैसे ही हमारे JDS जनता दल के कुमार स्वामी और देवेगौड़ा जी और उनके बच्चे अमित शाह और श्री मोदी जी को मिलने गए, उसी दिन मैंने इस्तीफ़ानामा दे दिया, जो तकरीबन नेशनल न्यूज़ में सब जगह दिखाया गया। और इस्तीफ़ा इसलिए दिया क्योंकि उसमें जो रह रहे थे लोग, मेरे दोस्त, मेरे आबाब, हर कोई, तकरीबन हर सियासतदान उसमें जो था, वो सब के सब उनके सेक्युलरिज्म को मानते हुए, कबूल करते हुए, वो सेक्युलरिज्म पे कायम रहेंगे ये सोचते हुए उनके साथ में थे। और वो हमेशा ये समझते थे कि ये सेक्युलरिज्म के तहत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सबको साथ में लेकर चलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये तय किया कि अमित शाह और मोदी जी से जाके मुलाकात करेंगे, तो हमें साफ पता चल गया कि ये अभी जो है ज़ात पात की पार्टी के साथ जमा हो रहे हैं। जो पार्टी हिंदू मुसलमानों हिंदुस्तान में उनके दरमियान नफरत के बीज बोने का काम करती है, उस पार्टी में जमा होने चले गए हैं। लिहाजा यहाँ सेक्युलरिज्म के कोई मानी नहीं रहते। ये देखते हुए बहुत सारे लोग बाहर आ गए। आज मैंने जनाब ज़मीर अहमद खान साहब, जनाब नसीर अहमद साहब, जनाब रिजवान अरशद साहब, जनाब सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार जी, इन सब के कहने पर आज मैंने यहाँ आकर, यहाँ के स्टेज पर मैंने सबके सामने मेरे सब साथियों के साथ बहुत सारे पोस्टों में थे, जैसे कि ख्वाजा पीर हैं और ताहिर हैं और मोहम्मद ताहिर हैं और जनाब अबरार साहब हैं। ये सब के सब सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी में JDS के सारे आज मेरे साथ में कांग्रेस में जमा हुए हैं, ताकि हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जो पार्टी आती है मरकज़ में, वो सेक्युलर पार्टी आए और ज़ात पात की बुनियाद पर लोगों में नफ़रत डालने की पार्टी ना आए, इसके लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ से हमारे कर्नाटक से 28 मेंबरान में ये जो मुसलमान को दिए हैं, उनको पूरी तरह से जिताने की पूरी कोशिश करके, उनको जिता के पार्लियामेंट में भेज के हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब आप JDS में थे तो हमेशा जो है कांग्रेस की मुखालिफत करते थे, कांग्रेस की तनकीद करते थे, तो कैसे आपने इस पार्टी को चुना? क्या मजबूरी थी या फिर जबरदस्ती से आप गए हैं? देखिए, मैं जब JDS में था, JDS का सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि JDS एक सेक्युलर पार्टी थी और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे पूरी तरह यकीन रखती थी और चलती थी। देवेगौड़ा जी भी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर बार बार अपने बयान दे चुके हैं। जब वो सेक्युलर से हट गए तो एक ही सेक्युलर पार्टी हमें नज़र आती है, जो कांग्रेस है। जहाँ तक मुखालिफत की बात है, सारी पार्टियाँ दूसरी पार्टियों से मुखालिफत करती रही है सारे हिंदुस्तान में, और मैं मुखालिफत करता था खुसूसन BJP की। जब JDS में था तब भी BJP की मुखालिफत करता था और नफरत डालने वाली पार्टियों की मुखालिफत करता था। अब मुझे साफ, हमें सब सारे हिंदुस्तानियों को मालूम है कि आज़ादी, हमारी जो हिंदुस्तान को आज़ादी लाई गई, उसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी ही थी। और हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने अपना खून, अपनी जान और अपना माल लगाया है जद्दोजहद आज़ादी में, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर लगाया है। लिहाजा इस पार्टी के मेंबर को हम जिताकर भेज के हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने के जैसे काम करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बताइए, आज बड़े जोश और जज्बे का माहौल है चामराजपेट में, आपने वादा किया यहाँ की लीड से मंसूर अली खान को जिताएंगे? नहीं, आप देखे होंगे जैसे ही हमारे पार्टी से मंसूर अली खान का जब अनाउंस हुआ कैंडिडेट करके, आप चामराजपेट क्षेत्र में देखे होंगे आवाम का जोश देखे होंगे। वजह इसकी क्या है? मंसूर अली खान एक नौजवान है, उसके साथ में एक एजुकेटेड पर्सन है, एक आवाम एक उम्मीद रखे एक मंसूर अली खान को जिताना करके आज आवाम का जोश देखे होंगे। हमने सिर्फ इधर वर्कर्स मीटिंग बुलाया था, इतने बड़े पैमाने में आदमी आता करके सोचा नहीं, मतलब वॉलंटरी, वो भी रमज़ान का महीना रह के और धूप का वक्त, इतना धूप होने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने में आवाम में, मतलब मेरे को देखे ताज हुआ। इस बार मैं 100% मैं यकीन रखता हूँ कि इस बार मेरे को जो 50 पर 4000 लीड मिला था,
आज कम से कम 70,000 लीड मिलेगा मंसूर अली सर, पिछले इलेक्शन के हारने की वजह जैसा कि आपने बताया कि कल साल के वोटिंग फीसद कम नहीं, रहा। पिछली इलेक्शन में हमारे अरशद रिजवान कैंडिडेट थे, 70,000 से हमारे हार हुई। अगर 35,000 भी अगर वोट लेते तो अरशद रिजवान की जीत होती थी। वजह इसकी क्या हो गया, खासकर माइनॉरिटी के अंदर परसेंटेज कम होता है, पोलिंग का परसेंटेज। जैसा कि गई बार पिछली बार जो है ना, परसेंटेज जो है माइनॉरिटी का खाली 48% हुआ। अगर 20% भी अगर बढ़ के परसेंटेज अगर होता तो रिजवान आज MP होकर रहता था। आज मैं आपके माध्यम मुखांतरा मेरे आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत मायने रखता है। एक वोट की वजह से आपका हार भी हो सकती है, एक वोट से जीत भी हो सकती है। इस वजह से मैं आपके माध्यम मुखांतरा मेरी आवाम से एक आजादाना गुजारिश करता हूँ, 5 साल में आपको 2 मौके मिलते बड़े इलेक्शन, एक MLA इलेक्शन, एक MP इलेक्शन में बड़ी तादाद में आप आके वोट करना करके माध्यम मुखांतरा मैं गुजारिश करता हूँ। आखिर में क्या बात कहेंगे सर, बड़ी ताकत आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है चामराजपेट असेंबली हल्के में। जी, ज़मीर भाई के जो पार्टी वर्कर और ज़मीर भाई की जो यहाँ पर गुडविल है, वो गुडविल आप देख रहे हैं सर। ये पार्टी वर्कर्स मीट थी, लेकिन जो हुजूम और जो लोग आए हैं, सो मुझे यकीन है चामराजपेट की आवाम और ज़मीर भाई की पूरी कोशिश से ज़रूर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीते, बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेगी। क्या एक वादा करना चाह रहे हैं लोगों से, क्या वादा करना चाह रहे हैं, क्या एक बड़ा वादा यहाँ पर आप करना चाह रहे हैं? यहाँ पर हम हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट और जो आम आदमी है उसका वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम कोई मेन एजेंडा डेवलपमेंट का ही है हमारा। हम कभी भी चुनाव होता है, देख लो चुनाव के वक्त पर कांग्रेस का इतिहास आप निकाल के देख लो, जब चुनाव होता है हम प्रचार के लिए जब जाते तो हमारे प्रोग्राम बताते हम कि हमने क्या किया था, आने वाले दिन हमें क्या करने वाले करके। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसा हिंदू मुसलमान उनका कुछ डेवलपमेंट वर्क है ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट ले रहे वो लोग। हमारा कांग्रेस का इतिहास निकाल के देखो, जब चुनाव आया हमारे प्रोग्राम बता के वोट लेते। जब पिछली गवर्नमेंट में हम थे, हम फलाना किए थे, आने वाली गवर्नमेंट हमारी आएगी तो हम फलाना करने वाले करके दिखा के हम वोट मांगते। अभी देखिए ना आप, हमारा 5 गारंटी 2023 के अंदर हमने 5 गारंटी अनाउंस किया था। अपोजिशन वालों ने क्या कहा था, ये इम्पॉसिबल है, इसको इम्प्लीमेंट करने को नहीं होता है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 50,000 करोड़ चाहिए। तो हमने जैसा हमारी हुकूमत बनी 1 महीने के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया। अभी घर 2000 जा रहा है, 200 यूनिट तक करंट फ्री है, 10 किलो चावल मिल रहा है, हर औरत मेरी बहन बस में फ्री घूम रही है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हमारे राहुल गांधी ने अनाउंस किया है कि 1 लाख रुपए एक महिला को दिया जाएगा। 1 लाख मतलब कितना हो गया, महीने का 8,000 हो गया, महीने का 8,000। हम स्टेट गवर्नमेंट से 2,000 दे रहे हैं, 10,000 हर घर को 10,000 रुपये मिलेगा। उसके साथ में 10 किलो चावल फ्री मिलेगा, करंट फ्री मिलेगा, बस में घूमने को फ्री मिलेगा। और क्या चाहिए गरीब को? गरीब मांगता है क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। वो एक ही है, कांग्रेस पार्टी एक ही है, ये तीनों चीज देने वाली है। सर आखिर में मंसूर अली खान के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो हैट्रिक MLA हैं, हैट्रिक MP हैं PC मोहन, तो क्या कहना चाह रहे इस हैं? बार पब्लिक बदलाव चाह रही है, चेंज चाह रही है। जो PC मोहन थे 3 बार नो डाउट 3 बार MP हो चुके, मगर कुछ तो करना चाहिए था ना। जो उम्मीद थी वो उम्मीद के सबसे कुछ नहीं किए, तो पब्लिक के अंदर तो दे वांट चेंज।